Project or admin. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So in the first part, we'll discuss about your doubts. So in this question is given that brakes are applied to a car moving with a disengaged engine. Means now the engine is not supplying any energy or force or power to the car. Bring it to halt after 2 seconds. So 2 seconds के बाद वो rest पे आ रहा है. Its velocity at the moment when the brakes are applied, if coefficient of friction between the road and the tire is 0.4 s. So we can just consider the situation as something like this. There is a car which is moving through a road, and let's say this car was moving with a velocity that is equal to nothing but u, and due to the frictional force exerted by the surface or by the road, it is coming to rest. So its final velocity becomes equal to nothing but 0. And over here, if we are taking time is equal to 0, and time taken to come to rest is given as nothing but 2 seconds. Got it? Now, over here, the value of initial velocity, now RM is to find out the value of u over here, and the value of coefficient of friction is given. So from that coefficient of friction, we can find out what about the value of acceleration over here. So if you're having, assume that the mass of this car is equal to m. So the weight of this car mg is acting in downward direction. So the value of normal reaction should be equal to nothing but mg. And frictional force is acting in the opposite direction as that of displacement of car. So we can find out what about the value of its acceleration, deceleration. So that is equal to force divided by mass. Force is frictional force and mass is m. And frictional force we can take it as mu into normal reaction and divided by mass m over here. So this mu is representing the coefficient of friction and n is representing normal reaction. mg. Normal reaction is equal to mg divided by mass. So we'll get the value of its acceleration is equal to mu g, and the value of mu is given in question as 0.4, and g we can take it as something but 10. So we can write the value of its acceleration is equal to 0.4 into 10, or we'll get its acceleration is equal to 4. Sir, Yeah, 9.8 answer will come. Okay, 9.8 लिया तो 9.8 ले लो, ठीक है. ये आप approximate answer find out करके उसका मतलब पास में जो value Nearest आएगा answer वो will दे दो. Yeah. तो इसका जो deceleration का value क्या हो गया, -4 हो गया. So we know the informations like इसका initial velocity का value find out करना है, final velocity 0 हो गया और इसका deceleration का value हो गया 4 और acceleration we can take it as -4. And the value of time is also given, which is something but 2 seconds. Excuse We me, can sir. go for bolo beta. Sir, actually, I joined just now. Can you just tell me what happened? I will just started solving this question. Okay. So over here, we know the value of u, v, a, and t.
So we can find out the value of this u over here by using that equation. V is equal to u plus at. Final velocity हो गया 0, initial velocity का value find out करना है. Acceleration is -4 and time is 2 seconds. So we can write the value of u is equal to 8. ये आप देख सकता है 8 का पास में जो value आ रहा है, they might be taken as 9.8. So we'll get this something like 7.84. Right. We can take next one. It is given that a book of weight 20 Newton is pressed between two hands and each hand exert a force of 40 Newton. तो assume that हमारे पास एक बुक है, उसका weight 20 Newton है, means mass 2 किलोग्राम है, और m into g 20 Newton डाउनवर्ड डायरेक्शन में exert कर रहा है. अभी हम लोग इसको प्रेस कर रहा है by using two hands, तो दोनों हाथ इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो ए भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ए भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो इस प्रेस बिटवीन टू हैंड्स, ईच हैंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. तो ए भी 40 न्यूटन एक्सर्ट कर रहा है, ए भी 40 न्यूटन एक्सर्ट कर रहा है. तो वी कैन से दैट ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा. नाउ इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा और इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 40. So the book just starts to slide. Just starts to slide means the force acting in upward direction and force acting in downward direction almost equal हो गया. So we can say that the force acting in upward direction is nothing but 2 times of frictional force, and frictional force acting on each surface, and force acting in downward direction is 20. So force, frictional force we can write. So we just वो move कर downward direction में. That means the value of 2f should be equal to 20, or you can write this f should be equal to 10. And f का value हम लोग लिखता है mu into normal reaction, that is equal to 10. So we can write the value of mu will be equal to, or the value of mu into normal reaction over here is nothing but 40 is equal to nothing but 10. So you can write the value of mu will be equal to 1 divided by 4. Or you can write 0.25 is a value of coefficient of friction. Sir, बोलो बेटा. sir, I have sent you one question. Can you just explain that? Yes. Sir, can you explain it again? Yeah. Over here जो बुक के ऊपर दोनों हाथ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो दोनों हाथ से फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो एक हाथ 40 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा हाथ भी 40 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो अगर आप ये बुक का देखिएगा तो इसके ऊपर वेट एक्सर्ट कर रहा है 20 न्यूटन, ये इधर एक्सर्ट कर रहा है फ्रिक्शन F, इधर भी ये जो हाथ है वो भी एक्सर्ट कर रहा है फ्रिक्शन F. एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस सरफेस इज नथिंग बट 40, and normal reaction on the other surface is also equal to nothing but 40. Got it? So mu into 40, mu into 40 means we can take it as 80 into mu is acting in upward direction, and which is balancing the value of weight 20. So we can write the value of mu should be equal to 20 divided by 40, yeah, 1 divided by 4. So the value of mu will be equal to 0.25. समझ में आया? सर बोलो बेटा. सर पर क्वेश्चन में लिखा है कि जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू उससे कम रहेगा ना. जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड मतलब फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो ये दोनों सेम है. टेक्निकली वो थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब 20 से थोड़ा कम है, वही इसलिए वो नीचे स्लाइड कर रहा है. तो जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट ऐसा कुछ दिया तो उसका मतलब है कि वो जस्ट बैलेंस कर रहा है, उसका मतलब है आप इसको दोनों को इक्वल ले सकता है ऐसा. अदरवाइज उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. और बोल. गॉट इट? समझ में आया? Sir, can you show the previous sum?
Next one is given that an object at rest suddenly exploded into 3 parts with masses in the ratio 2:1:1. Part of equal masses move at right angles to each other with equal speed v. The speed of third part after explosion will be. Sorry, So yeah, so we are having an object of mass, let's say 4. अभी इसको क्या हो गया 3 part में divide हो गया. So take it as one part is having a mass, let's say that is equal to 2. एक part का mass 2 है और दूसरा जो portion है उसका mass 1 है और तीसरा जो part है उसका भी mass 1 है. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है 2 part है which are having same mass. अगर दोनों का mass जो 1 था they are the part of equal masses move at right angles to each other. मतलब ये अगर ये direction में move कर रहा है with the velocity v, so this is going to move along this direction with the velocity v. The speed of the third part after explosion will be. तो third part है मतलब जो 2 किलोग्राम है उसका velocity कितना है वो find out करना. तो अगर here कोई भी explosion का केस है मतलब कुछ external force exert नहीं कर रहा, they are moving because of internal forces. इक्विलिब्रियम होना चाहिए. So yeah, so we can say not equilibrium. इसका जो total momentum है it should be get conserved. So momentum of this system should be equal to a constant. So explosion होने से पहले वो rest पे था, तो we can say that explosion होने के बाद भी उसका momentum का value 0 ही होना चाहिए. तो net momentum should be equal to 0. So we can take it as 2 into, मान लो it is going to move with some velocity v. We don't know what about the direction of that. So 2 into v vector plus मतलब उसका momentum होगा plus 1 into v vector, 1 into v plus 1 into v should be equal to nothing but 0. That means 2v vector should be equal to, yeah, v dash vector should be equal to v vector plus v vector. And question में दिया है these two vectors are perpendicular. तो when two vectors are perpendicular उसका resultant का value क्या होगा √2 into v रहेगा. So 2v dash will be equal to √2 into v, or you can write this v dash will be equal to √2v divided by 2, or you can write as v divided by √2. तो जो second मतलब इसका mass 2 kilogram that should move it should move with the velocity v divided by √2, so that net momentum is going to get conserved. Got it? Any doubt? No, sir. Next one, it is given that a mass of m kilogram is suspended by a weightless string. Horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle 45 degree with the initial vertical direction is. So initially we are having a block of mass m over here. वैसा ऐसा था. अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करके इसको डिस्प्लेस कर रहा है in such a way that our aim is to find out the horizontal force required to displace this until the string makes an angle 45 degree. तो हम लोग इसके ऊपर कुछ horizontal force F exert कर रहा है so that after some times it is going to make an angle 45 degree. Let's say tension over here is equal to T and weight of this block mg is acting in downward direction. So we know that in such type of question we'll consider the condition for equilibrium, that is net force acting along any direction should be equal to 0. So we can resolve this T into its components. So this will be equal to T cos 45 and this component will be equal to T sin 45. So if it is in equilibrium, force acting in upward direction should be equal to force acting in downward direction, or force acting towards left, that is T sin 45 should be equal to F, and T cos 45 should be equal to nothing but mg. So if you are going for equation number 1 by equation number 2, we'll get as sin 45 by cos 45 just tan 45. Tan 45 will be equal to F divided by mg, और tan 45 का value 1 होता है, 1 should be equal to F divided by mg, or you can write the value of this F should be equal to nothing but mg. Got it? Any doubt? No, sir.
Sir, can you wait? I want to copy this. Hello, sir. बोलो बेटा. Sir, can you once show the previous question? Sir, in this question, how did root 2 came? 2 वेक्टर्स हमने ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है ना. इट्स नॉट Okay. v वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं. तो एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? √2v आएगा ना. Yes, sir. Thank you, sir. And sir, can you solve 29th question of classwork 1? Yes, yes. Sir, I have also sent Sir, you a done. question. Yes, yes. Next one is given that a mass of 10 kilogram is suspended by a rope of length 2.8 meter from the ceiling. A force of 98 Newton is applied at the midpoint of rope. It makes, as shown in figure, the angle which the rope makes with the vertical in equilibrium is also like similar to the this question. Over here, take it as tension, the string is equal to T, and this angle is given as nothing but theta. We are exerting a force of 98 towards right, and weight of this object m into g. Let's say g as 9.8, so 98 is acting in downward direction. So this we can take it as nothing but T cos theta, and this we can take it as nothing but T sin theta. So we can write the value of this T sin theta is equal to nothing but 98, and T cos theta should be equal to nothing but 98. Sir, 45. So we can write, yeah, sin theta by cos theta, that is tan theta will be equal to 1. So theta should be equal to 45 degrees. Got it? Any doubt? No, sir. The 29th question of Newton's law of motion. Yeah. Next one, it is given that the acceleration time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. Acceleration time graph, okay. Acceleration time graph is given. What is the time the particle acquire its initial velocity? तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कितना टाइम के बाद वो वेलोसिटी अटेन करेगा, वो फाइंड आउट करना. तो अब जो भी ग्राफ को ऑब्जर्व करेगा, नॉर्मली ग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने दो चीज लेता है. वन इज व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस कर्व, एंड सेकंड वन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व देखेगा या स्लोप देखेगा. तो पहले आप डिसाइड करना है कौन सा चीज देखना है, एरिया अंडर द कर्व देखना है कि स्लोप देखना है. अगर मतलब हमने स्लोप देखेगा तो स्लोप इज गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ dy by dx. तो इधर dy y का जगह पे क्या a है, तो dA divided by nothing but dt है. Correct? So this is representing the rate of change of acceleration. So we don't know what is the we don't have any specific term like rate of change of acceleration over here. तो इससे हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ देखते हैं अदर मेथड क्या होता है. एरिया अंडर द ग्राफ होता है. एरिया अंडर द ग्राफ होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx. अगर हमने एरिया अंडर दिस कर्व एंड x एक्सिस फाइंड आउट कर रहा है, तो ओवर हियर इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ a dt. तो हम देख सकते हैं व्हाट दिस इंटीग्रेशन ऑफ a dt रिप्रेजेंट्स. सो वी कैन राइट a को हम लोग ले सकता है, a इज इक्वल टू नथिंग बट dv डिवाइडेड बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइक वेलोसिटी होता है. Yes, So we sir. can write this a is equal to nothing but dv divided by dt into dt. तो dt dt get cancel. अगर हमने इसको इंटीग्रेशन करेगा dv को from u to v, V so this minus is u. going to give the value of v minus u. So area under acceleration time graph is going to give the value of
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज गिवन दैट एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, u होना चाहिए। अगर फाइनल वेलोसिटी भी u हो गया तो u माइनस u क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा टाइम में एरिया अंडर द ग्राफ हमको 0 मिलेगा। सो एरिया अंडर दिस ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम Sir, can एक्सिस, you repeat again after v minus u? अभी एरिया अंडर द ग्राफ का वैल्यू v माइनस u मिलेगा, ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. सो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर इनिशियल वेलोसिटी, कितना Yes. टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी Yes, sir, इनिशियल got it, वेलोसिटी sir. होगा, फाइंड आउट करना। दैट मींस v का वैल्यू क्या हो गया, u हो गया। ये हो गया, तो एरिया अंडर ग्राफ 0 होना चाहिए। एरिया हाँ अंडर सर, द ग्राफ 0 16 होना आएगा आपके चाहिए। शायद से। या तो वी कैन से दैट अगर हमने ग्राफ को हम लोग एक्सटेंड कर रहा है नहीं 8 होगा तो क्या होगा कि या ए सर, एरिया 8। ए एरिया के साथ कैंसिल होना चाहिए। Sir, how तो did you सर take 8 v होगा। as u? हाउ, Sir, how did you take v as u? I didn't understand that. एक क्वेश्चन पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी, Yes. कितना टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी उसका इनिशियल वेलोसिटी का इक्वल होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का इक्वल हो गया। तो v का वैल्यू u हो गया ना, तो u माइनस u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। Yes. Yes, Okay. sir. तो एरिया क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। Hmm. बराबर। तो ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। Hmm. तो ग्राफ अगर हमें एक्सटेंड करेगा तो ये एरिया इक्वल टू एरिया होना चाहिए, मतलब क्या है, और 4 जाना चाहिए। बस Yes, इधर sir. 4 तक था, इधर भी 4 तक ही होना चाहिए, ताकि ये Yes. पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, 4 और मतलब टाइम कितना हो गया, 8 सेकंड हो गया ना। Yes, sir, got it. ऑलरेडी 4 पे है, 4 और आगे जाना चाहिए। Okay. Sir, I didn't understand that what is arc, मतलब how at what particle. क्या बोला बेटा, So can you explain that what is asked, मतलब व्हाट इज, that at what particle, what is asked in the question? दे आर आस्किंग दी एट व्हाट टाइम, कौन सा टाइम में पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट किया होगा ना, वापस हाँ। सेम वेलोसिटी कितना टाइम के बाद अटेन किया है ऐसा। Okay. तो पार्टिकल देखो u वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, फिर उसको क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन करे तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जा रहा है। Okay, तो जब ये ग्राफ वापस वैसे ही बनेगा तब वो सेम वेलोसिटी पे आएगा। सेम वेलोसिटी पे आएगा। तो पहले आप देख सकते हैं इधर से इधर तक पार्टिकल हाँ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ही जा रहा है, बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये पॉइंट के बाद क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, तो पार्टिकल का स्पीड कम होता जा रहा है। स्पीड कम होके ये पॉइंट में पहले कितना वेलोसिटी से स्टार्ट किया था वो वेलोसिटी में आ गया वापस। सर ये तो डायरेक्टली भी बोल सकते ना। Yeah. Next one is given that two particles P and Q are moving with velocities I plus j and minus I plus 2j respectively at t is equal to 0. P is the origin and Q is the point, is a point with position vector 2i cap plus j cap. Then the shortest distance between P and Q is. तो हमने एक कंडीशन डिस्कस किया था, लाइक अगर दो पार्टिकल मूव कर रहा है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिशन बिटवीन देम। अगर कोलिशन नहीं हो रहा है तो व्हाट अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो हम लोग इसको ऐसा करता है, लाइक इफ यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ए ओवर हियर and another object b over here, if a is moving with the velocity v1 and b is moving with the velocity v2, तो पहले हम लोग क्या करेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एक को रेस्ट पर रखना है तो a का वेलोसिटी v1 कम करेगा तो b का वेलोसिटी भी v1 कम करेगा,
तो a रेस्ट पे हो गया. Then we'll find out what about the velocity of b with respect to the value of a. And अगर a रेस्ट पे है and b is moving through a path something like this, then we can just draw a perpendicular. So this is the minimum possible distance between them, right? तो इसका जो Yes, minimum possible distance है, तो हम लोग इसको ऐसा find out करते हैं. अगर ये distance अगर L हो गया, this distance is taken as nothing but L, and this angle is equal to nothing but theta. So ये हो जाएगा L sin theta. So basically RM is to find out what about the value of L sin theta, that is going to give the value of minimum distance. Okay? बोलो बेटा. सर आपने जो हमको फॉर्मूला दिया था टाइम टेकन फॉर कोलिजन का, वो यूज करके हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते? टाइम टेकन फॉर कोलिशन नहीं है, उसमें कोलिशन होता है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है. इसमें कोलिशन नहीं हो रहा है. अच्छा ठीक है. तो हमको L sin थीटा पूछता है, और या L sin थीटा तक आने के लिए कितना टाइम है वो पूछ सकता है. हाँ. करेक्ट. यस सर. सो हमको L sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन को आप इसी हिसाब से लिखना है. ठीक है. तो अभी देखो दिस इज, ये जो v है वो v क्या होता है, v is velocity of 2 with respect to 1 है. तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पार्टिकल को रेस्ट पर रखना पड़ेगा. तो पहले आप देखते हैं एक क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो लोग. टू पार्टिकल्स p and q are moving with velocities, तो v1 और v2 दिया है at t is equal to 0, p at origin, p origin पे है. तो मान लो हमारे पास एक पार्टिकल p है, वो origin पे है, वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, वो वेलोसिटी को v1 मान लो. ठीक है. तो p का जो वेलोसिटी है that I'm just taking it as v1, तो v1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है i plus j. करेक्ट. एंड सेकंड जो पार्टिकल है q है, तो मान लो सेकंड पार्टिकल इज समवेयर ओवर हियर q, एंड दैट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, उसको हम लोग v2 मान लो. तो सेकंड जो पार्टिकल का वेलोसिटी है v2 व्हिच इज गिवन अस -i plus 2g. ओके. तो v1 हो गया, v2 हो गया. अभी at t is equal to 0 पार्टिकल p at origin and q is at a position. q का पोजीशन वेक्टर भी दिया है, मतलब ये जो r वेक्टर है, this r vector is given as nothing but वेक्टर को क्या दिया था, 2i cap plus j cap. तो this is given as nothing but 2i cap plus j cap. Okay. The shortest distance between p and q is. तो हम लोग पहले क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रेस्ट पे रख देगा. So assume that I'm just going to keep this p at rest. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, p को रेस्ट पे रखा है तो पूरा सिस्टम का वेलोसिटी v1 कम करना पड़ेगा. Then we'll find out what about the value of q. We'll find out what about the velocity of q with respect to p while assuming that this p is at rest. And if it is moving through a path something like this, then we can find out what about the value of shortest distance over here. उसके लिए क्या है, ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए, पता होना चाहिए. Then L sin theta is going to give the value of minimum distance between them. तो पहले हम लोग ये v का वैल्यू निकालते हैं. तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, velocity of q with respect to p. So velocity of q means velocity of 2 with respect to 1. Velocity of 2 with respect to 1 is velocity of 2 minus velocity of 1. तो पहले हम लोग देखते हैं what is velocity of 2 with respect to 1. तो velocity of 2 हमको पता है which is i cap plus 2j cap minus velocity of 1 is nothing but i cap plus j cap. तो हमको इसका velocity मिलेगा minus it is minus 2 i cap and 2 minus j which is plus j cap is the value of velocity of 2 with respect to 1. Got it? अभी हमको ये भी फाइंड आउट, ये भी पता होना चाहिए वो जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है. तो आप देख सकता है हमारे पास दो वेक्टर है, वो दो वेक्टर का बीच में एंगल हमको फाइंड आउट करना है. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करके फाइंड आउट कर सकता है अगर आई जे के में दिया है तो. तो हमारा जो v वेक्टर है वो v वेक्टर का वैल्यू हो गया 2i कैप प्लस j कैप, एंड हमको ये थीटा का वैल्यू चाहिए. तो उसके लिए हम लोग a वेक्टर को कंसिडर कर लो. तो दिस वेक्टर मान लो r वेक्टर कैन बी रिटर्न एज नथिंग बट माइनस 2i कैप माइनस j कैप. समझ में आया ये क्या लिखा है?
बिकॉज आई कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप वो डायरेक्शन में था, तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल होगा, एंगल बिटवीन दम व्हेन देयर टेल्स आर कनेक्टेड। सो दोनों वेक्टर का टेल को कनेक्ट करेगा, तो ए आर वेक्टर को हम लोग ले सकते हैं माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप, एंड दस वी सर वेक्टर इज माइनस 2 आई कैप। बोलो बेटा, बोलो सर बोलो। वो तो आगे की डायरेक्शन में है सर, 2i कैप प्लस j कैप। हाँ, वही डायरेक्शन, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एंगल बिटवीन दम व्हेन देयर टेल्स आर कनेक्टेड, राइट? यस तुमने ये सर, पॉइंट में ए वेक्टर मिला वो समझ में आया, वी वेक्टर समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। या अभी हमारा जो आर वेक्टर है वो क्वेश्चन में क्या दिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये हमारा आर वेक्टर है यस ना। सर, यस सर, तो अगर आर वेक्टर और फी वेक्टर के बीच में एंगल देखे तो हमको ए एंगल मिलेगा ना। यस सर। हमको ए एंगल नहीं चाहिए, हमको ए एंगल चाहिए ना। ओके, तो हम लोग क्या किया, ए आर वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर देखो, आर यस वेक्टर सर, का समझ ऑपोजिट गया डायरेक्शन सर। मतलब ए वेक्टर हो गया, तो यस सर, उसका नेगेटिव लेगा, समझा? यस सर, नाउ वी कैन फाइंड आउट ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। अगर दो वेक्टर अगर जैसा वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम बाय यूजिंग द कांसेप्ट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट ab cos थीटा। तो हम लोग को जो cos थीटा का वैल्यू मिलेगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो पहले हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा? This is minus 2 into minus 2, that will be equal to 4, and this is 37 minus 1, 3 by 5, so 37. this will be equal to 3 divided by a का magnitude रहेगा which is under root of 4 plus 1, that is root 5, and b का magnitude भी क्या रहेगा, root 5 रहेगा, तो this will be equal to 5 divided by 3। बट हमको क्या चाहिए, 53 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू नहीं, sin थीटा का वैल्यू चाहिए। सर आपका ओके, वॉइस ना, बिकॉज़ आवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा, सर आपका बोलो बोलो। वॉइस थोड़ा कट रहा है। या एक मिनट। तो ये जो वेक्टर है इसका cos थीटा का वैल्यू हमको मिला है, बट आर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का, बोलो बेटा। sir, you did vector a dot b, right? So you should write in terms of vector. Why did you take the magnitude? समझ में नहीं आया बेटा। Sir, you did a dot. a dot, So you did a dot b in the numerator, right? which is a vector dot b vector is ab cos theta। Yeah. So a dot b we should write in terms of I cap and j cap, right? i cap and j cap नहीं था ना, i cap और j cap में है ना ये। Sir is अरे telling इट that इज डॉट I प्रोडक्ट, cap इट is इज like डॉट Ah, प्रोडक्ट। okay, okay, okay. वो Sorry. बोल रहा है कि आपको डॉट प्रोडक्ट Got it, sir. अरे Sir, डॉट got it. प्रोडक्ट में सिर्फ स्केलर रहता है। Sir, So over got it. here it is, we can take it as, अगर हमको क्या है, sin theta का वैल्यू चाहिए। So the value of cos theta, assume that we are having a right angle triangle. So अगर ये theta है, cos theta क्या represent करता है? Cos theta represents adjacent side divided by hypotenuse. तो हमको पता चलेगा ये जो साइड है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। So cos theta 3 by 5 है, so we can write the value of sin theta will be equal to 4 divided by 5। अभी हमको क्या चाहिए, L का वैल्यू चाहिए। तो L के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका ये जो वेक्टर है सेंटर से इसका पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको L बोलता है। तो L का पोजीशन वेक्टर दिया था क्वेश्चन में, दैट पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज, या R वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज नथिंग बट 2i कैप प्लस j कैप। 2i कैप प्लस j कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकता है 2i कैप प्लस j कैप का। So magnitude of this vector will be equal to nothing but a root of 5, 4 plus 1. So we'll get the final answer as nothing but L sin theta. L is root 5 and sin theta is 4 by 5. So you can write the final answer will be equal to 4 divided by a root of 5. Got it? यस सर।
Sir, level 1 classwork question 33. या आपको जो भी डाउट है आप उसको मतलब व्हाट्सअप कर दो ताकि हम लोग क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. अभी मैं उसका पीडीएफ लेके मैं डिस्कस करता हूँ, बट अगर इधर उधर है तो मतलब आई कैन नॉट लाइक इंस्टेंटेनियसली गेट इट ऑल दैट थिंग्स। तो आपको जो भी डाउट है आप उसको एक फोटो निकाल के भेज दो मेरे को, सो दैट विल डिस्कस इन क्लास। वरना उसका ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वो 9 o'clock से पहले भेज दो, बिकॉज 9 o'clock से मेरा क्लास स्टार्ट होता है, तो उससे पहले मैं उसको सेट करके रख सकता हूँ। Now discuss about the next question. It is given that from a motor boat moving downstream with a velocity of 2 meter per second with respect to river, the sound fall on an ordinary boat at the instant when the motor boat collide with the ordinary boat. The velocity of ordinary boat with respect to the river is equal to 0, and river flows with a velocity of 1 meter per second. Then the initial velocity vector of sound with respect to the earth is. So question में मान लो we are going to observe with respect to ground, or over here it is given that from a motor boat moving downstream with a velocity 2 meter per second. ये जो motor boat है वो इस तरफ move कर रहा है with a velocity 2 meter per second with respect to river. And the sound falls, then from here we are just projecting an object. Let's say we are projecting an object something like this. It's moving through a path something like this and it reach over here. ऐसा ही ऑब्जेक्ट इधर से इधर तक आ गया तो ये जो मोटर बोट है वो मूव करके इधर तक आ गया. Got it? So the falls on the ordinary boat at the instant when the motor boat collide with the ordinary boat. The पहले जो वो ये दोनों बोट के बीच में डिस्टेंस था वो क्वेश्चन में दिया है which is 20 meter. Okay. And the velocity of ordinary boat, the river flow with a velocity of 1 meter per second. So assume that we are observing with respect to the with respect to that river. तो river के हिसाब से मतलब इसको हमने river को reference line मान लिया. तो with respect to river, this boat is moving with a speed of 2, and river itself is moving with a velocity that is equal to 1. तो with respect to ground, इसका velocity होगा 3. But with respect to water, इसका velocity 2 है, and with respect to water, a boat rest पे है. तो इसका जो velocity हम लोग 0 ले सकते हैं with respect to water, and with respect to ground, उसका velocity क्या रहेगा 1 रहेगा. Okay? तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं with respect to water, ये बोट इधर से इधर तक मूव करने के लिए कितना टाइम है. तो along the horizontal direction, अगर आप along the horizontal direction देखिएगा, so along the horizontal direction, we can write distance traveled is equal to 20 and velocity is 2. So we can write time taken will be equal to nothing but 10 seconds. Time is equal to distance divided by velocity. तो horizontally मतलब it will take a time of 10 seconds to travel. तो vertical भी हम लोग ले सकता है, उसका जो time of flight है उसका वैल्यू क्या हो गया 10 सेकंड हो गया. Got it? तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उधर से प्रोजेक्ट करने के बाद ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लिया 10 सेकंड लिया. तो हम लोग फाइंड आउट कर सकता है इसका वेलोसिटी ऑफ उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितना था. तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग को पता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है, तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा 5 सेकंड रहेगा. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को हम लोग लेट्स से उसको u मान लो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन टेक इट एज g का वैल्यू 10 ले लो. तो जब उसका मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो वेलोसिटी क्या रहेगा 0 रहेगा. वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं. तो इफ यू आर यूजिंग दैट इक्वेशन v is equal to u plus at, सो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया और मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो गया. इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 था, तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 5 बिकॉज 10 सेकंड में ग्राउंड में आ गया तो 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट में आ गया. तो इसका u का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया.
राइट. सो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी था 50 एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसका वेलोसिटी क्या था 2 था. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो बोट है, ये बोट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी 2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट वाटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका वेलोसिटी होगा 3. नाउ सेम डायरेक्शन में ना 3. सर वाटर का फ्लो का डायरेक्शन में ही जा रहा है वो, यस सर. तो इसका क्या रहेगा 3 रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 50. तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है 3 along I cap plus 50 along J cap. This one is the initial velocity vector with respect to ground. समझ में आया? सर बोलो बेटा. सर पर सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना वेलोसिटी? एक्चुअली इट इज रिस्पेक्ट टू रिवर. It is with respect to velocity of boat with respect to river दिया है 1 and velocity of boat with respect to river 2, velocity of river 1 दिया है. अच्छा ओके, सॉरी आई डिडंट गॉट दैट. विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं बता था. If you're having any doubt, अब just उसको equation को लिख के देख लेना. Velocity of boat with respect to river is 2. So velocity of boat with respect to river is velocity of boat minus velocity of river. So velocity of boat means velocity of boat with respect to ground is velocity of boat with respect to river plus velocity of river. So velocity of boat with respect to river 2 दिया है, velocity of river 1 दिया है, so that's why it is 3. थैंक यू. यस सर, गॉट इट सर. Next one, it is given that a particle starts from rest with a constant acceleration. The ratio of space average velocity to the time average velocity is. तो एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकता है. नॉर्मली कोई भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐसा लिखता है. इन जनरल हम लोग टाइम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करता है because we are writing total displacement divided by total time. Okay, तो total displacement को अगर हम लोग मान लो average velocity with respect to time find out कर रहा है तो we'll write the equation as integration of v dt divided by integration of dt. मतलब v into dt represents displacement, integration of displacement means total displacement, integration of ds means total displacement है ना. बिकॉज v क्या होता है ds डिवाइडेड बाय dt होता है, तो v इंटू dt रिप्रेजेंट्स नथिंग बट ds. तो v dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ds का इंटीग्रेशन है, ds का इंटीग्रेशन मतलब s होता है और dt का इंटीग्रेशन t होता है. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय dt. अगर हम लोग इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो हम लोग इक्वेशन को लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ v ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds. गॉट इट. तो हम लोग कौन सा टर्म अगर x का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इसका इक्वेशन ऐसा लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dy. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए तो with respect to dt and divided by total time, with respect to distance divided by total distance. समझ में आया? यस What is the सर. difference between space average velocity means distance के हिसाब से कर रहा है, time average velocity means with respect to time कर रहा है. अब देखना है ये जो v dt और this integration of by dt का वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, the particle is moving with a constant particle is moving with a constant velocity and starting from rest. तो initial velocity 0 है and constant acceleration से जा रहा है. Okay, तो अगर आप ये equation को अगर integration करना है so we need to write it in terms of like t का टर्म हम लोग को लिखना पड़ेगा, v को है ना v dt का या टर्म में हम लोग इसको लिखना पड़ेगा. so we can write ए v को हम लोग a का टर्म लिख सकता है v इज इक्वल टू u प्लस at से, u का वैल्यू 0 है
तो v का वैल्यू हम लोग 80 लिख सकते हैं ना. Got it? We cannot integrate v with respect to dt. v को इंटीग्रेशन करना है तो dvt का टर्म चाहिए, या dt के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है तो t का टर्म चाहिए. इसलिए v को रिप्लेस करके a इंटू टी लिखा. v इज इक्वल टू u प्लस 80 से u 0 था, a इंटू टी इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. समझ में आया क्या लिखा है? So we can write this is equal to nothing but integration of a constant over here, and constant को हमने कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा ही लिखेगा. t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t dt का इंटीग्रेशन, ये t raised to 1 है. 3 square by 2. Yeah, so this will be equal to t square divided by 2 divided by dt का इंटीग्रेशन होगा t. Okay, so we can write this will be equal to a t divided by 2 हो गया. Got it? Yes, Now sir. इसमें आप ये भी लिख सकता है 80 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग v, तो इसको आप चाहिए तो v डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकता है. समझा? अभी हम लोग देखते हैं स्पेस एवरेज का वैल्यू क्या है. तो इसको भी अभी देखो, v को हम लोग क्या करना पड़ेगा, s का टर्म लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकता है. तो v और s में क्या रिलेशन है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v का वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ 2as होगा. तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू a इंटू s ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds. So we can write this will be equal to root of 2 into a into s. There root of 2a constant है, and root s मतलब क्या हो गया? s raised to 1 by 2 हो गया. s raised to 1 by 2 into ds का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds. तो s raised to 1 by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? This is S3 by 2. s raised to 3 by 2. Yeah, s raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 divided by 3 by 2 divided by ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया? s हो गया. Yes. तो this will be equal to nothing but root of या 2 divided by 3 into root of 2 into a, इतना कांस्टेंट हो गया. s raised to 3 by 2 by s raised to 3 by 2 minus 1, that is s raised to 1, This is 1 by 2. or s raised to 1 by 2, so s raised to 1 by 2. So we can write this is 2 divided by 3 into root of 2 into a into s, मतलब s raised to 1 by 2 मतलब root s ही है ना. And root of 2as is representing nothing but the value of v, तो इसको हम लोग 2v by 3 लिख सकता है. Got it? अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? The value of space average velocity 2v by 3 divided by v by 2 का वैल्यू पूछा है. तो v and v get cancel, इसका आंसर क्या मिलेगा? 4 divided by 3. Can you please explain this sum again? Yeah. Sir, Sir, once can you show the full sum? Full sum. And zoom out. Can you zoom out a little? sir, average velocity, time average velocity, and space average velocity, all three are different. Yes, yes. No, average velocity different तरीके से फाइंड आउट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते, नॉर्मली टाइम ही रहता है. सर अपन तो हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लेते हैं ना एवरेज वेलोसिटी. यस, दैट इज टाइम एवरेज वेलोसिटी. अगर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करता है तब लोग एवरेज वैल्यू हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही देखता है. Sir, can you please explain this sum again? Hello, sir. Hello, sir.
हो गया, लिख दिया? Yes, sir. या सो जो एवरेज वैल्यूज है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का टर्म में लिख सकता है। तो अगर हमने टाइम का कोई भी चीज का अगर मान लो x का एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहा है तो हम लोग लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर हम लोग x का एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर y कर रहा है तो हम लोग इसको लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy विद रिस्पेक्ट टू और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो ओवर हियर क्वेश्चन में पूछा है दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हम लोग लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt by t and another one with respect to space or with respect to distance, तो इंटीग्रेशन ऑफ v ds divided by ds करेगा एंड उसका रेशियो फाइंड आउट किया है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू dt करना है तो v को t का टर्म में लिखना पड़ेगा, तो v is equal to u plus 80 से हमने इसको 80 लिखा है। अगर हम लोग इसको ds के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है तो v को s का टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमने इसको रूट ऑफ 2 into a into s लिखा है। फ्रॉम दैट इक्वेशन v square minus u square is equal to 2s। तो हमको दो वैल्यू मिलेगा, उसको रेशियो फाइंड आउट किया है। Hello, sir. बोलो बेटा। Sir, but instead of root of t 2as, we can also write like v equals to s by t. No, we cannot write v is equal to s by t. We can write v is equal to s by t only when that v is equal to a constant. If v is equal to a constant, then only we can write velocity is displacement by time. Over here, particle is moving with a constant acceleration, so velocity is not a constant. तो हम लोग v को s by t नहीं लिख सकता है। Got it? Constant acceleration से जा रहा है। Yes, sir. Got it. अभी इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी नहीं है तो हम लोग v को रूट ऑफ 2 into a into s भी नहीं ले सकते, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब a is equal to v dv by ds वाला यूज करना पड़ेगा। Next one, it is given that if theta is the angle between unit vectors a and b, then 1 minus a dot b divided by 1 plus a dot b is. So if theta is angle between two unit vector means a का और b का magnitude 1 है, तो a dot b का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 into cos theta मिलेगा, and 1 plus a dot b फिर से we can write as 1 plus cos theta over here, and 1 minus cos theta का वैल्यू होता है which is nothing but 2 sin square theta by 2, and 1 plus cos theta का वैल्यू होता है 2 cos square theta by 2, a trigonometric relation. तो sin square theta by cos square theta we can take as tan square theta divided by 2. Next one, the position of a particle is given by, position matlab displacement of a particle is given by x is equal to nothing but a t square plus b into e raised to alpha t. The particle is at x is equal to -1 at t is equal to 0. So x का value -1 था when time is equal to 0. Moving with the speed of v meter per second, and वो time उसका velocity का value 2 meter per second था. The value of a so that initial acceleration is 0 is. तो displacement as a function of time दिया है, तो उसमें से हम लोग velocity ढूंढ सकता है एक बार differentiation करें तो. So we can write the value of velocity is equal to dx divided by dt. So if I am differentiating this equation with respect to time, a is a constant, t square का differentiation होगा which is equal to 2t plus
b is a constant, e raised to x का डिफरेंशिएशन होता है e raised to x, इधर x का जगह पे e raised to alpha into t है, तो हम लोग क्या लिखेगा, e raised to x का डिफरेंशिएशन हो गया e raised to x। अभी हमने कौन सा टर्म को x कंसिडर किया है, अल्फा t को कंसिडर किया है, उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फा t का डिफरेंशिएशन हो गया अल्फा, तो हम लोग उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हमने इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएशन करेगा, so we are going to get the value of its acceleration over here. So we can write the value of its acceleration is equal to nothing but dv divided by dt. तो एक और बार इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेगा, तो 2a is a constant and t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो b alpha is a constant, e raised to minus alpha t का डिफरेंशिएशन e raised to minus alpha into alpha, तो हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा 2a प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर ई रेज टू अल्फा टी इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर। अभी क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ a सो दैट इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0 इज, इनिशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब t का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेगा, 0 पुट करेगा। सो एट t is equal to 0, a का वैल्यू क्या रहेगा 2a प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू e रेज टू अल्फा इंटू 0, t का जगह पे 0 पुट किया तो e रेज टू 0 आएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज नथिंग बट 1, सो a का वैल्यू क्या आएगा 2a प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर आएगा, करेक्ट। So that will be the value of a when t is equal to 0. Okay, इसमें इसका वैल्यू दिया है, मतलब a और b और a b और अल्फा का वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है, x का वैल्यू जब -1 था एट -1 when t is equal to 0, तो x का इक्वेशन हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया डायरेक्टली, x is a t raised to a t square प्लस b e raised to alpha t। तो x का वैल्यू क्या दिया है, -1 दिया है एट t is equal to 0, तो t0 मतलब ये टर्म का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, प्लस b इंटू e रेज टू t का वैल्यू फिर से 0 कर रहा, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा -1 मिलेगा, करेक्ट। और वेलोसिटी का भी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी का इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, तो वेलोसिटी का इक्वेशन था 2 इंटू a इंटू टी प्लस b इंटू e रेज टू अल्फा e raised to b into e raised to alpha into alpha। क्वेश्चन में वो भी दिया है एट t is equal to 0 वेलोसिटी का वैल्यू क्या था 2 था, तो v का जगह पे 2 लिख दो, 2 इंटू a का वैल्यू हमको पता नहीं है और t का वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया है, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0 प्लस b का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, हमको -1 मिला था, इंटू अल्फा इंटू e raised to 0 विच इज 1, तो माइनस अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा -2 मिलेगा, करेक्ट। अभी हम लोग ये दोनों वैल्यू एक क्वेश्चन में इधर पुट कर दो, तो क्वेश्चन में क्या दिया है द वैल्यू ऑफ a सो दैट इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0, सर तो a का -1 होगा ना, नहीं ये 2 to 0 इसका 0 हो गया ना बेटा, सॉरी तो a का वैल्यू क्या 0 हो गया एंड 2 इंटू a प्लस b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, क्या था -1 था, और अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था -2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 आएगा, सो वी कैन राइट 2a इज इक्वल टू 4 हो गया, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, समझ में आया। सर कैन यू बोलो। एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन पार्ट अगेन। हम लोग को अगर e रेज टू x का डिफरेंशिएशन है, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e रेज टू x रहता है, Yes. अगर e रेज टू लेट्स से ax है तो क्या लेगा, हम लोग इसको e रेज टू x ही मान लेगा, Into a. तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन हो गया, e रेज टू ax का डिफरेंशिएशन हो गया, e रेज टू ax। अभी हमने कौन सा टर्म को x कंसीडर किया है,
उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है। तो ax का डिफरेंशिएशन होगा a, तो a से हम लोग मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन करेगा तो डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेगा, इसमें डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए e raised to alpha x था, तो हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Got it? Yes, sir. Write down this one. Sir, can we send the doubts of NLM also? आपको कोई भी मैं डाउट है वो भेज दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा वो वेक्टर के ऊपर ही होगा, वेक्टर एंड रिलेटिव मोशन हो सब, मतलब ट्रैक शीट में जो दिया है उसके ऊपर ही होगा। आप पूरा सॉल्व कर दो, एनएलएम भी सॉल्व करो, उसका डाउट भेज दो। Next one is given that calculate the acceleration of a block of 2 kilogram, assuming that the surface and the pulleys P1 and P2 all are smooth and pulleys and the string are light. तो हम लोग को इसका acceleration का value find out करना है। हम देख सकते हैं इसमें जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है उसके ऊपर क्या है, 70 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हम लोग इसका टेंशन ड्रॉ कर सकता है, या तो इधर का टेंशन होगा T, तो सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू, टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द एंड, तो टेंशन का डायरेक्शन ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रहेगा T, ए भी रहेगा T, सेम स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट में टेंशन सेम रहेगा, एंड इधर रहेगा टेंशन विच इज 2T, एंड इधर भी रहेगा टेंशन विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2T। तो हर एक पॉइंट का टेंशन हमने लिख दिया। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट का, एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। अगर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा तो दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ मास ऑफ 2 किलोग्राम एंड उसके ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 70 न्यूटन एंड अज्यूम दैट इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, ओके। और मान लो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, इसको a2 मान लो, एंड इधर हमारे पास एक मतलब स्ट्रिंग है, दैट स्ट्रिंग इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2T ओवर हियर। तो ये हो गया free body diagram for 2 kilogram block. Like that we can write the free body diagram for 4 kilogram block. तो 4 किलोग्राम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो 4 किलोग्राम ब्लॉक है, उसके ऊपर टुवर्ड्स राइट ये एक टेंशन एक्सर्ट कर रहा है और ये दोनों मिला के 2T एक्सर्ट कर रहा है, तो पूरा मिला के कितना हो गया, 3T का टेंशन हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, या एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन, हमको पता नहीं है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू a4। तो हम लोग इसका दो इक्वेशन लिख सकता है। तो फर्स्ट 2 किलोग्राम ब्लॉक है उसके लिए इक्वेशन लिख सकता है 17 minus 2T is equal to m into a, that is 2 into a2, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग सेकंड के लिए इक्वेशन लिख सकता है which is 3T minus 3T is equal to, एक ही फोर्स है तो 3T is equal to nothing but mass into acceleration, that is 4 into a4 over here। तो ये दोनों को अपने ऐड करके T का वैल्यू तो निकाल सकता है, बट अगेन तो वेरिएबल होगा a2 और a4। तो फाइंड आउट करना पड़ेगा a2 और a4 में क्या रिलेशन है। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पुलीज एंड स्ट्रेट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम, मतलब a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a4 का वैल्यू a2 का टर्म में लिखना पड़ेगा, ओके।
तो पहले देखते हैं ये दोनों का बीच में एक्सीलरेशन में कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है. So we can write the constraint relation between these two block. तो assume that कि 4 kilogram block है which is moving towards left with an acceleration of a4 and this is moving towards left with an acceleration of a2. अभी अब इसका constraint relation देखो. अगर ये ब्लॉक 4 किलोग्राम ब्लॉक a4 से towards left में जा रहा है तो this string is going to move with an acceleration of a4 and this string is also going to move with an acceleration of a4, right? समझ में बात? अभी ये जो string है ये a block के साथ attach करके रखा है and if this block is going to move with an acceleration of a2 तो this string is going to move with an acceleration of a2. तो if you are having any doubt मैं individually एक पुल्ली को draw करता हूँ. ये पुल्ली को आप देख लो. ये पुल्ली के ऊपर ये जो string है this is going to move with an acceleration of a4 and ये जो string है इसका acceleration हमको पता नहीं है, find out करेंगे. and ये जो string पुल्ली है वो block के साथ attach करके रखा है and block is moving with an acceleration of a2 over here. समझ में आया? अभी ये जो string है उसका acceleration को x मान लो तो हम लोग x का value find out कर सकता है by using our constraint relation. तो पुल्ली के लिए constraint relation था a2 is equal to a4 plus x divided by 2. So we can write 2a2 minus a4 is the value of x. ये समझ में आया? Now we can find out we can just observe this pulley over here. तो ये अगर a2 से जा रहा है तो ये अगर x से इस तरफ जा रहा है तो ये पुल्ली इसका भी क्या रहेगा x रहेगा and इसका a4 है and ये इधर अटैच करके रखा है तो इसका क्या रहेगा 0 रहेगा. फिर हमने a पुल्ली को मैंने इंडिविजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये जो पुल्ली है इधर एक स्ट्रिंग है and it is going to move with an acceleration of x and this pulley is going to move along this direction with an acceleration of a4 and this string is connected to a fixed support तो उसका तो move नहीं करेगा, उसका क्या रहेगा 0. अभी फिर से हम लोग इसका constraint relation लिखेंगे. तो इसका constraint relation होगा a4 is equal to x plus 0 divided by 2. तो we can write 2a4 is equal to x and x का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, that is 2a2 minus a4. So we can write this is basically 3a4 is equal to 2 divided by a2. So the value of हमको तो a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a4 का टर्म को रिप्लेस कर दो. तो a4 will be equal to 2a2 divided by 3. सर बोलो बेटा. समीशन ऑफ t डॉट a से भी कर सकते ना, जल्दी आएगा उससे. हाँ कर सकता है. t dot a मेथड से कर दो या कंस्ट्रेंट से कर दो. So Yes. we can write this. We can put this value over here. a4 का जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 3t is equal to 4 into a4. a4 can be written as 2a2 divided by 3. Alright. अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लो. ये दोनों इक्वेशन को उसमें से t का टर्म तो कैंसिल कर दो तो हम लोग को a2 का वैल्यू मिलेगा. समझ में आया? सर वो x क्या लिया आपने? जो अननोन है उसको x लिया. वो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन पता नहीं था ना, इसको x लिया. सर वो समझा. सर वो फर्स्ट डायग्राम समझा. फिर सर 0 क्यों लिया उधर? 0 सेकंड डायग्राम में x और 0 लिया ना, 0 क्यों लिया? ये अटैच करके रखा ना बेटा. ये देखो इधर इधर बांध कर रखा है तो स्ट्रिंग जाएगा नहीं है ना. हाँ यस. फिक्स्ड है ना, फिक्स करके रखा तो नहीं जाएगा. ये आप कंस्ट्रेंट मतलब जो t डॉट a मेथड से भी कर सकता है. आप देखो जो 2 किलोग्राम ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन कितना है, इसका टेंशन कितना 2t था and it was moving towards right with an acceleration a2. and जो 4 किलोग्राम ब्लॉक है उसको देखो
इसके ऊपर टेंशन पूरा मिला के T और 2T मिला के 3T का टेंशन एक्सर्ट कर रहा था, that is moving towards right with an acceleration a4. So for the system T dot A should be equal to 0. तो इधर 2T and A2 are acting in opposite direction, so T dot A का value मिलेगा minus 2T into A2, and either T and this one are in the same direction, so plus 3T A4 should be equal to 0. That means 3T A4 is equal to 2T A2. That means the value of A4 is equal to 2A2 divided by 3. हम लोग को जो value मिला है इधर से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सब वेक्टर्स और रिलेटिव वेलोसिटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. कोई भी क्वेश्चन अगर बाकी है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी सॉल्व करना है, और आपको जो भी डाउट है आप 9 o'clock से पहले व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? Yes, sir. ये आप लोग जो भी बुकलेट का क्वेश्चन है, तो मेरे पास बुकलेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लाइक PDF फॉर्म, तो इसलिए आप क्वेश्चन को भेज दो, ठीक है? तो डिस्कस इन क्लास. हेलो सर. सर बोलो बेटा, बोलो. हाँ? ऑन द ग्रुप सर मेरे को कुछ का आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा, क्या बोला? बोलो. सर अब से एग्जाम में कौन सा मतलब ये होगा, ट्रैक कौन सा ट्रैक फॉलो होगा? अभी जो नया ट्रैक भेजा ना ग्रुप में, ओके, वो जो फॉर्मूला और होमवर्क के साथ में दिया वो वाला ना? या यस 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 यस. और इसमें जो होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिया है उसमें से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछेगा टू चेक इट वेदर यू आर एक्चुअली डूइंग द होमवर्क और नॉट. तो उसमें जो होमवर्क में लिखा है वो तो पक्का करना ही है क्वेश्चंस. ओके सर. बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे थे? सर कैन यू प्लीज दिस पुट दिस वीडियो लिंक ऑन ग्रुप सर. थोड़े थोड़े पार्ट समझे नहीं मैं, इसलिए देख. क्लास का लेक्चर का वीडियो हाँ सर. क्या है, मैं पोस्ट कर. थैंक यू सर. ओके.